Okay, my dear students of class 2, today we are starting English literature, English Twilight, lesson 1. Lesson 1 is magical scarf. Magical scarf means जादुई दुपट्टा. First of all, the theme of this story is the magic. Can a person score his aim with magic without doing any hard work, any labor? The answer of this question will be get in this lesson. This is regarding a girl, Rakshika. She was very intelligent but lazy. She always watched TV and playing in the garden. Once she found a scarf which her father told that it's a magical scarf. Who wear it will success in her life. Rakshika obey her grandfather and work hard. She scored first in the class. Once the scarf missed and she became very sad, very upset. But her grandfather told that the magic was not in the scarf, but it is in your labor, in your hard work. That's the theme of this story. I think you all were very clear about this story. Now, ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन आलसी है. वो हर समय टीवी देखती है, अपने गार्जियन की बात नहीं मानती है और खेलती रहती है. एक बार उसे एक स्कार्फ मिलता है गार्डन में, जिसको वो अपने दादाजी को दिखाती है. उसके दादाजी बोलते हैं ये मैजिकल स्कार्फ है और जो भी इसको पहनेगा वो अपनी लाइफ में सक्सेस करेगा. ऐसा सुनकर रक्षिका वो स्कार्फ ले लेती है और उसको लेकर वर्क करने लगती है हार्ड और पढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो क्लास में फर्स्ट आती है. वो ऐसा सोचती है कि इस स्कार्फ की वजह से मैं फर्स्ट आई हूँ. अचानक एक दिन उसका स्कार्फ गुम हो जाता है. वो बहुत अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाती है कि आगे उसके लाइफ में क्या होगा. तब उसके दादाजी उसको समझाते हैं कि जादू उस स्कार्फ में नहीं था, बल्कि जादू तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी हार्ड वर्क में था. इसलिए मेहनत करो, सक्सेस हो जाओगी. ये स्टोरी का थीम है. अब हम लोग लाइन बाय लाइन स्टोरी को पढ़ेंगे और उसका मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा. तो केयरफुली. There was a girl called Rakshika. She was very intelligent but lazy. She did not want to study. Her grandfather loved her very much. When her mother asked her to switch off the TV, she would go to her grandfather's room and start watching her favorite cartoon programs there. Now, एक लड़की थी जिसका नाम था रक्षिका. वो बहुत बुद्धिमान थी लेकिन आलसी थी. वो कभी पढ़ना चाहती ही नहीं थी. उसके दादाजी उसे बहुत प्रेम करते थे. जब उसकी माँ उसको डांटती थी तो वो अपने दादाजी के रूम में जा कर के अपना फेवरेट कार्टून शो देखने लगती थी. When her grandfather asked her to study, she would go off to the park. One day she was walking in the park when she saw a red scarf lying in the bed of roses. She picked up the scarf and asked everyone around if it
was theirs, but nobody said yes. She took it home with her. She showed the scarf to her grandfather. He was amazed to see the scarf. He said that it was a magical scarf. It was first given to Arjun by Krishna in the Mahabharata. Anyone who wears it and performs his or her duties well would become successful. Now, in this paragraph, you have to understand that जब उसके ग्रैंडफादर बोलते थे कि आप पढ़ो, तो वो पार्क में चले जाती थी। एक दिन जब वो पार्क में घूम रही थी तो उसे एक रेड स्कार्फ मिलता है, जो कि बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज मीन्स फूल का जो कैरी है जिसमें कि बहुत सारे फूल लगे हैं, दैट्स कॉल्ड बेड ऑफ रोजेज, उस पर पड़ा था। वो उसे उठा लेती है और इधर उधर लोगों से पूछती है अगर वो किसी का है तो, लेकिन कोई भी उसको बोलता है नहीं बोलता है, तो वो क्या करती है कि उस स्कार्फ को लेकर के अपने दादाजी के पास जाती है, दादाजी को दिखाती है। दादाजी स्कार्फ को देखकर अचंभित हो जाते हैं, अमेज्ड मीन्स अचंभित होना, अचंभित हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये एक जादुई स्कार्फ है। ये फर्स्ट टाइम कृष्णा ने अर्जुन को दिया था जब महाभारत हुआ था, और जो कोई भी इसको पहनेगा और अपना काम अच्छा से करेगा वो अच्छी तरह से अपना जीवन में कामयाबी प्राप्त करेगा। नाउ Rakshika was glad to hear it. She started wearing it and soon she became the best girl in the class. She started working hard and she scored well too. Her grandfather was very happy to see this change in Rakshika. Her exams were only 2 weeks away and she was working hard for it. She had promised her grandfather that she would score good marks in the exams. But a day before the test, Rakshika came home crying. Somebody has stolen her scarf. How will I get good marks in exam now? She cried. Now, रक्षिका यह सुनकर बहुत खुश होती है कि ये स्कार्फ मैजिकल स्कार्फ है और ये कृष्णा ने अर्जुन को दिया था। वो उस स्कार्फ को पहनकर और अपना हार्डवर्क करने लगती है और अपना इस क्लास में अच्छा आने की कोशिश करती है। उसके ग्रैंडफादर ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि रक्षिका में बहुत बदलाव आता है, बहुत चेंज आ रहा है। अब उसके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए थे और रक्षिका बहुत हार्ड मेहनत कर रही थी। उसने अपने ग्रैंडफादर को प्रॉमिस किया था कि वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएगी, लेकिन अचानक टेस्ट से एक दिन पहले रक्षिका रोती हुई घर आती है और अपने ग्रैंडफादर से बोलती है कि मेरा स्कार्फ किसी ने चुरा लिया, अब मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी। नाउ अब आगे उसके ग्रैंडफादर उसको क्या समझाते हैं वो आप लोग सुनिए। माय डियर प्रिंसेस, said her grandfather, patting her back, the magic was not in the scarf. The magic lies within you. Work hard and certainly you will get good marks. Rakshika was confused, but she worked hard and she stood first in the class. On the day of the result, when the principal of the school called her on the stage to give her the trophy, she had tears in her eyes. When she returned home, she rushed to her grandfather and said, "Thank you, grandfather, for making me realize my ability." तो क्या बोलते हैं उसके दादाजी कि मेरी प्यारी राजकुमारी, मैजिक स्कार्फ में नहीं था, मैजिक तो आपके अंदर है। आप हार्डवर्क कीजिए और आप अवश्य में अच्छे मार्क लाएंगे। रक्षिका थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज मीन्स उसको थोड़ा संशय हो गया
लेकिन उसने जो है अच्छा हार्ड वर्क किया और अपनी क्लास में फर्स्ट आई। रिजल्ट के दिन जब प्रिंसिपल ने उसको कॉल किया बेस्ट ट्रॉफी देने के लिए, तब वो उसकी आंखों में आंसू आ गए और जब वो अपने घर गई तो वो दौड़कर अपने ग्रैंडफादर के पास गई और बोली, धन्यवाद दादाजी, आपने मुझे मेरी योग्यताओं को समझने में मेरी मदद की, मुझे रियलिटी में समझाया कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।